Welcome back to Vector Space. In this video, we will cover my personal favorite topic from all of math, O level, A level, whatever. It's my favorite topic to teach. It is binomial theorem. So why is it my favorite topic? It's because it gives you an insight into how beautiful mathematics is. Like बाकी टॉपिक्स के अंदर तो हमें लगता है जैसे ओके स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड आंसर आ जाएगा फील्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फील्स काइंड ऑफ ड्राई लेकिन बाइनोमियल थ्योरम इट इज़ ब्यूटीफुल ठीक है सो स्टार्ट करते हैं मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओ लेवल एड मैथ और ए एस लेवल मैथमेटिक्स जहाँ पे जो P1 है उसके अंदर ये टॉपिक है और ओ लेवल एड मैथ में है दोनों में दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक. So before we can actually start the binomial theorem, we have to talk about some preliminaries. And the preliminary is Pascal's triangle. ठीक है, so there was this French mathematician Blaise Pascal, and he proposed this idea of Pascal's triangle. मैं बताता हूँ वो क्या है. By the way, this is the same Pascal who you may have heard in physics. ठीक है, physics में जो pressure का unit है, it is Pascal. And this was the same guy who that is named after as well. So let's talk about this Pascal's triangle. Imagine that you start with 1, okay, and you have imaginary zeros on either side of this 1. We're going to do a very simple step, and that step is going to result in a triangle. वो स्टेप क्या है कि हम दो एडजेसेंट नंबर्स को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे उनके दरमियान में लिखेंगे. So 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is also 1. And then there are, of course, these imaginary zeros around these as well. दोबारा ऐड करें. We have 0 plus 1, the answer is 1. Then we have 1 plus 1, the answer is 2. And then 1 plus 0, the answer is 1. Again, these imaginary zeros around it. तो मैं ये imaginary zeros आगे नहीं लिखूंगा. I'll just write 2 more rows में भी. So ये बनेगा 1, 3, 3, 1. And of course we have zeros. उसके बाद इनको दोबारा ऐड कर दें. 1, 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, and then 1. And so on. You keep going. और ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा. And this triangle is known as the Pascal's triangle. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस टॉपिक में उस पर बाद में आते हैं. फॉर नाउ जस्ट कीप दिस इन द बैक ऑफ योर माइंड और इस पर हम वापस आएंगे. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ द बाइनोमियल थ्योरम. एज ऑलवेज बिफोर एवरी टॉपिक मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस चैप्टर, हम करना क्या चाहते हैं. सो वी विल हैव एक्सप्रेशंस लाइक दिस a plus b to the power of n. By the way, this a plus b is called a binomial. Binomial का मतलब है two terms. Bi means two, and we have a power of n. ठीक है, this n can have any power और हमने इसको expand करना है. And this expansion is very important. अक्सर जगहों पे मैथमेटिक्स में हमें इस तरह की expansions करनी पड़ सकती हैं. For low values of n, 1, 2, 3, it's very easy इसको expand करना, but for high values of n ये बहुत tedious हो जाएगा, which is why we need the binomial theorem. So that is the goal of binomial theorem. It is to expand binomials. ठीक है, okay. So let's now explore some of these expansions और binomial theorem को develop करते हैं from scratch. So in this exploration phase हम क्या करेंगे, हम a plus b to the power of n को expand करेंगे for the first few values of n, and then we will try to find any patterns. अगर हमें कोई patterns नज़र आ जाते हैं तो that means कि हम इसको थोड़ा generalize कर सकते हैं. So let's do that. We expand this for first few values of n और कुछ values तो आपने पहले से देखी हुई हैं. So for example a plus b to the power of 0 वो क्या होगा, anything to the power of 0 is 1. So ये आ गया हमारे पास 1. उसके बाद a plus b to the power of 1, that is simply a plus b. उसके बाद a plus b square, ये भी आपने देखा हुआ है पहले, a square plus 2ab plus b square. यहाँ तक तो सब फेमिलियर होंगे. आगे जो है a plus b whole cube, आप में से शायद किसी को इसका फॉर्मूला आता हो, कुछ को शायद ना आता हो. So I'll just write the answer here. ये बनेगा a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. आप में से जिनको इसका फॉर्मूला नहीं आता, you can do it like this कि a plus b cube है, so this becomes a plus b
टाइम्स ए प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद जो ए प्लस बी स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड देन यू मल्टीप्लाई आउट दीज ब्रैकेट्स, इनको एक्सपैंड करें, लाइक टर्म्स को कंबाइन करें, तो आपके पास ये चीज़ हो जानी चाहिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सो इसी तरह आप जो है वो a प्लस बी टू द पावर ऑफ 4 भी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन दैट आई विल राइट। सो ये बनेगा a टू द 4 प्लस 4 टाइम्स a क्यूब b प्लस 6 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a b क्यूब, and then we have plus b to the power of 4. I believe this is correct, yes. सो ए प्लस बी क्यूब तक तो शायद किसी को फॉर्मूला आता होगा, लेकिन ये तो आई एम 100% श्योर कि किसी को फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, एंड नाउ इमेजिन यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, कितना टीडियस होगा इसको अलजेब्राइकली निकालना। सो दैट्स व्हाई वी नीड द बाइनोमियल थ्योरम। तो हमने ये फर्स्ट फ्यू एक्सपेंशंस लिखी हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड सम पैटर्न्स इन इट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको इनकरेज करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लें एंड फाइंड द पैटर्न्स योरसेल्फ। आर देयर एनी पैटर्न्स हियर? सो आई विल सी यू इन अ मोमेंट। ऑलराइट, आई होप यू हैड अ चांस टू थिंक अबाउट इट। अब मैं सारे के सारे पैटर्न्स बताता हूँ आपको जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नोट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। आप देखें यहाँ पे इट इज 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स। टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, एंड वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ n इज, देयर इज ऑलवेज वन एक्स्ट्रा टर्म। सो हियर द वैल्यू ऑफ n इज 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हैं। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ n इज 4, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हैं। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, सो एवरी बाइनोमियल एक्सपेंशन विल हैव n plus 1 terms. The next observation is the powers of a. So आप नोट करें यहाँ पे पावर ऑफ a 1 है और यहाँ पे 0 है, बिकॉज मैंने लिखा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि a doesn't exist there. a to the power of 0 is present in this term. यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ 1 हो गई, एंड देन यहाँ पे 0 हो गई। इसको देख लें, यहाँ पे a की पावर 4 है, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, एंड में जाके a पावर 0। तो सारी की सारी जो पावर्स ऑफ a हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड गोइंग डाउन टू 0। देखें यहाँ पे 4, n की वैल्यू 4 थी ना, तो a की पावर भी 4 से शुरू हुई, यहाँ n की वैल्यू 3 है, a की पावर भी 3 से शुरू हुई। सो द पावर्स ऑफ n दे आर स्टार्टिंग at n and they are ending at 0. Now let's talk about the powers of b. Powers of b देखें तो opposite जा रही हैं। यहाँ पे b पावर 0 है, then b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3 and then b पावर 4। इसी तरह यहाँ पे b की पावर 0 है, b की पावर 1 and then b की पावर 2। So b is the opposite। तो जो b की पावर्स हैं they are starting at 0 and they are ending at n। ठीक है, और क्या पैटर्न्स है हमारे पास? द लास्ट पैटर्न, आई थिंक ये वाले पैटर्न्स तो शायद आपको दिखाई दे गए हों, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको ये जो आखिरी पैटर्न है कोएफिशिएंट्स के अंदर ये शायद दिखाई ना दिया हो। सो इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 है, इधर 1 2 1 है। सो व्हाट्स हैपनिंग विद द कोएफिशिएंट्स? यहाँ पे वी हैव 1 4 6 4 1, कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, एंड दैट इज बिकॉज दीज कोएफिशिएंट्स दे फॉलो द पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, सो a प्लस बी टू द पावर ऑफ n की अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी द nth रो ऑफ द पास्कल्स ट्राइंगल। सो ये हमारे पास द फर्स्ट वन इज रो 0। बाय द वे इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है इन पास्कल्स ट्राइंगल। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4। आप देखें रो 4 के जो एलिमेंट्स हैं 1 4 6 4 1, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर आल्सो 1 4 6 4 1। So these are all the patterns। यहाँ मैं लिख लेता हूँ that the coefficients nth row of the Pascal's triangle, and these 4 observations that we have made, if we combine them, this is the binomial theorem. That's it. That is the idea behind
द बाइनोमियल थ्योरम। इसको हम फॉर्मली लिखेंगे आगे, लेकिन जो भी हम फॉर्मली चीज़ लिखेंगे इट्स जस्ट अ समरी ऑफ दीज 4 ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव मेड। तो अब हमने ये ऑब्जर्वेशंस लिख ली हैं। नाउ यू विल सी हाउ इजी इट इज़ टू एक्सपैंड a plus b to the power of 5। आई थिंक कि आप ये खुद भी कर सकते हैं। पॉज द वीडियो हियर। सो पहली बात कि इसके अंदर 6 टर्म्स होनी चाहिए, जो a की पावर्स हैं वो 5 से शुरू होनी चाहिए एंड दे शुड गो डाउन a to the power of 1, a to the power of 0। जो b की पावर्स हैं आई विल राइट देम इन अ डिफरेंट कलर, वो 0 से शुरू होनी चाहिए एंड दे शुड गो अप टू n। So b power 4, we should have b power 5 here। और जो कोएफिशिएंट्स हैं दे शुड बी द नेक्स्ट रो ऑफ द पास्कल्स ट्राइंगल। तो यहाँ पे आते हैं हम एंड नेक्स्ट रो लिखते हैं हम। दिस इज 1 5 10 10 5 1। So 1 5 10 10 5 1 should be the coefficients. Maybe I can write them in a different color। 1 5 10 10 5 1। और अब इन सब के दरमियान में प्लस साइन लगा दें बिकॉज दीज आर ऑल समिंग अप एंड दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the power of 5। सो इजी कि इतनी बड़ी एक्सपेंशन हमने बाइनोमियल थ्योरम से कितनी आसानी से कर ली। सो वी जस्ट यूज्ड these 4 observations that we have made और ये पैटर्न आगे चलता जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। सो दैट्स द बाइनोमियल थ्योरम। एक छोटी सी चीज़ रह गई है और छोटा सा मसला क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हमें इमेजिन करें कि निकालना पड़ जाए a plus b to the power of 20, तो क्या हम हर बार पास्कल्स ट्रायंगल बनाएंगे? क्या हम इसकी 20 रोज लिखेंगे आगे तक? सो दैट इज टीडियस, इट इज absurd। हम ये तो नहीं करना चाहते। द होल पॉइंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इज टू मेक लाइफ इजी। और अब हम एक और मसले में फंस जाएं विच इज टू मेक दिस होल ट्राइंगल। सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोना डू दैट। ठीक है, तो जो रोज ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल हैं द कैलकुलेटर कैन डू दैट फॉर यू। तो कैलकुलेटर पे फंक्शनैलिटी होती है टू फाइंड एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ द पास्कल्स ट्राइंगल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आई विल राइट इट, आई विल जस्ट राइट कोएफिशिएंट, कोएफ्स लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट्स एंड द rth एलिमेंट ऑफ nth रो of the Pascal's triangle is given by NCR। NCR आपने कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस के टॉपिक में शायद पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। बट द NCR बटन in your calculator, the combinations button, will give you the rth element of the nth row of the Pascal's triangle। ठीक है, सो जब आप पूरी एक्सपेंशन लिख रहे हो यू नो के कौन सी रो चाहिए आपको। उसके बाद जब आप एक एक एलिमेंट लिखेंगे तो आप r की वैल्यू चेंज करते रहेंगे एंड दैट्स हाउ यू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन। सो जो लोग इससे फेमिलियर नहीं हैं, आई विल पुट अ फोटो ऑफ द कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन नाउ जब मैं एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को, एंड यू कैन सी कि उसके ऊपर मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि ये जो NCR वाला बटन है ये कहाँ पे है। एंड यूजुअली व्हाट यू डू इज, लेट्स से कि आपने निकालना हो 4C3 के जो फोर्थ रो है उसमें से थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करते हैं कि आप पहले 4 लिखते हैं, फिर आप ये वाला बटन दबाते हैं जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो आपकी स्क्रीन पे एक C आ जाएगा बड़ा सा, एंड देन यू राइट 3 और उसके बाद यू प्रेस इक्वल एंड whatever the calculator says that is the third element of the fourth row of the Pascal's triangle। so सारा काम हो गया। now we can formally write what is the binomial theorem। ठीक है, जो फॉर्मल इसकी डेफिनेशन है। so यहाँ पे मैं लिखता हूँ formal treatment of binomial theorem। ठीक है, वो क्या है कि अगर हमने एक एक्सपेंशन के अंदर लेट्स से वी हैव a plus b to the power of n, तो इस एक्सपेंशन के अंदर जो t r+1 है, the r+1 टर्म, ठीक है, वो क्या होगी? दैट वुड बी NCR a to the power of n minus r, b to the power of r। दैट्स इट। अगर आपने फॉर एग्जांपल फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप r की जगह पे 4 डाल देंगे, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना 4 + 1 एंड दैट इज t5 एंड दैट इज गोना बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे भी r है वहाँ वहाँ पे आपने 4 डाल देना है। अगर आपने सेवन्थ टर्म निकालनी है तो आप r की जगह पे 6 डाल देंगे, बिकॉज देन
6 + 1 विल गिव यू T7। तो जो भी आपने नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे R की वैल्यू डाल देंगे एंड दैट वैल्यू विल ऑल्सो गो हियर। तो आपके पास जो है वो कोई भी टर्म आ जाएगी। जो ये वाला पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल NCR इज जस्ट द कोएफिशिएंट, और ये जो A और B हैं दीज आर हियर, और ये जो n-r और r है ये क्या हो रहा है, दिस इज सिंपली क्योंकि हम n में से r को माइनस कर रहे हैं तो ये वो वाला काम करेगा कि a की पावर्स को कम करता जाएगा और b की पावर्स को बढ़ाता जाएगा एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, सो दैट्स द फॉर्मल ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। द बायनोमियल थ्योरम हैज़ बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करेंगे, और देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं। बट द कॉन्सेप्ट इज़ डन, लेकिन इसके काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो मैं हर तरह का सवाल इस सीरीज़ में कराऊंगा, एंड इन ऑल द सब्सिक्वेंट वीडियोस वी लुक एट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड, आपको समझ आई हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।